So welcome to dear students for my another lecture, and this lecture is column with eccentric load. इससे पहले what we have discussed about the column when the load, compressive load is acting on the axis. But here we will discuss about column with the eccentric load, and in that case then what is the value of the maximum stress here? We have to calculate the value of the maximum stress in this case. So before discussing to the column, to this topic column with eccentric load, there are some important terms which we will first discuss. तो पहला एक टर्म है डायरेक्ट लोड. So what is the direct load? ये जहाँ पे हम इसका suppose this is your column, right? And this is the axis of the column. एक column है, ये इसका axis है column का. So this is the, आप कह सकते हैं this is the axis of the column and this is the column. Direct load means the load which coincides with the centroidal axis of the column. जो लोड आपका centroidal axis of the column से coincide करेगा, or you can say that the load is acting on the axis of the column, that load is called the direct load. और इस केस में डायरेक्ट लोड में हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट स्ट्रेस. कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे? डायरेक्ट स्ट्रेस. एंड इफ A is the area, capital A, if I say that capital A is the area of cross section of the column, then the direct stress, this is equal to P upon A. You understand? Direct stress is P upon A. सेकंड जो टर्म है इसमें हमें समझना चाहिए eccentric load. What is eccentric load? eccentric load होगा, अब इसको मिटा देते हैं हम. eccentric load आपका when the line of action of the load does not coincide with the centroidal axis. जो लोड आपका है वो centroidal axis के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है. ये आपका लोड, suppose if I say this is the column and the load is acting at this point P, तो ये लोड जो होगा this is the eccentric load. सेंट्रिक लोड का क्या डेफिनेशन है? द लोड विच डजंट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइडल एक्सिस, और यू कैन से द लोड विच इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस बट एक्टिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट लोड इज कॉल्ड द एसेंट्रिक लोड. और जो आपका एसेंट्रिक लोड होगा, ड्यू टू दिस वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस. हमें दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस मिलेंगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम एसेंट्रिसिटी. व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? आप इसमें एक आएगा एसेंट्रिसिटी आएगा आपका कि एसेंट्रिसिटी हम किसे कहते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल e. द डिस्टेंस between the eccentric load and the axis of the column. eccentric load का जो line of action of the eccentric load और axis of the column के बीच में जो distance होगा, जैसे this is the line of action of the load, P is acting here, this is the line of the action of the load, and this is the axis of the column. The distance between the line of action of the eccentric load and the column, that is called the eccentricity. You understand?
तो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जब हम इसका डेरिवेशंस करेंगे। कॉलम विद द एसेंट्रिक लोड मीन्स when the eccentric load is acting on the column and we have to calculate the maximum stress on the column. So these terms we must understand. Now आप इसको देखिए, आप when the load is acting on the column, you can say so if we transfer the load, ये जो आपका सेंट्रिक लोड है, आप क्या करें इसको, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉलम, ये सेंट्रिक लोड को ट्रांसफर करें, ट्रांसफर द सेंट्रिक लोड ऑन द एक्सिस। अगर हम सेंट्रिक लोड को एक्सिस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे जस्ट लाइक दिस पी, एंड जहाँ पर भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट लोड होगा, this is also P, right? And the second one plus दिस इज एक्सिस, और जहाँ पे आपका लोड था, यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन से, ये मैं जो डायग्राम ड्रा किया दोनों, कि व्हेन द एसेंट्रिक लोड इज एक्टिंग ऑन द कॉलम वी विल गेट द डायरेक्ट स्ट्रेस हमें मिलेगी, दैट इज इक्वल टू P upon A. When we transfer the load on the axis, we will get the, because this is the direct load. As P is acting on the axis of the column, so this is the direct load, and the direct load that produces the direct stress, that is P upon A, plus due to this load, because the load is acting here, तो एक तो आपका क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और दूसरा आपका क्या प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। सेंट्रिक लोड जो है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। सेकंड इज बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज M by upon I. You understand? Direct stress and the bending stress. So this is the condition when the eccentric load is acting on the column. We will get the direct stress and we will get the bending stress. Direct stress we will get when the load is acting directly on the axis, and the bending stress we will get due to the bending moment. You understand? So you can say total stress जो हमारी होगी, therefore total stress जो हमें फाइंड आउट करना है, कि टोटल स्ट्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। So total stress, this is the sum of the direct stress P upon A plus M by upon I. You understand? So this is the total stress. So these are some important terms जब हम derivations करेंगे कि columns which is having the eccentric load, उस derivations में हमें वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेस। और टोटल स्ट्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मेरा बेंडिंग स्ट्रेस का जो चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में आपके आई थिंक कंप्लीट 7 to 8 लेक्चर्स दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए और उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का जो टॉपिक है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर आपको बताया है। यू अंडरस्टैंड? वो डिफरेंट लेक्चर्स दिए हैं और जहाँ से आप देख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस व्हेन द एसेंट्रिक लोड इज एक्टिंग ऑन द कॉलम, राइट? सो क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि हमें बतानी थी जहाँ पे कि डायरेक्ट लोड क्या है। डायरेक्ट लोड इज दैट लोड whose line of action coincide with the
एक्सिस ऑफ द कॉलम। डायरेक्ट लोड क्या है? जिसका लाइन ऑफ एक्शन लोड का सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ द कॉलम से कोइंसाइड करेगा, उस लोड को हम कहते हैं डायरेक्ट लोड, और ड्यू टू द डायरेक्ट लोड वी विल गेट द डायरेक्ट स्ट्रेस। एंड जो आपका एसेंट्रिक लोड है, सेंट्रिक लोड क्या है? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड doesn't coincide with the centroidal axis. It is at some distance from the centroidal axis. कुछ डिस्टेंस के ऊपर होगा, वो centroidal axis से coincide नहीं करेगा. So that load you can say this is called the eccentric load. And eccentricity, what is this? J distance, the distance between the line of action of the eccentric load and the axis of the column, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलम्स विद एसेंट्रिक लोड, यू अंडरस्टैंड? तो अब हम एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आएंगे, कॉलम विद एसेंट्रिक लोड। सो लेट अस कंसिडर ए कॉलम दैट whose one end is fixed and the other end is free। इसका डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक कॉलम का suppose this is your column, इसका एक एंड फिक्स है एंड द अदर एंड इज फ्री। Suppose this end is B and this end is A, and the length of the column that is equal to, suppose length of the column जो है वो आपकी किसके बराबर है? Length of the column, this is equal to L. You understand? Eccentric load is acting on the column. तो आप B पॉइंट के ऊपर जहाँ पे एक, मैं कहता हूँ कि एक एसेंट्रिक लोड है, दिस इज P एट दिस डिस्टेंस। सो P इज द एसेंट्रिक लोड, इज एक्टिंग ऑन द कॉलम, और J जो डिस्टेंस है, J वाला और J वाला, J क्या होगा आपका? जैसे एज पर डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि दिस डिस्टेंस इज E। E क्या है? The distance between the line of action of the centric load and the axis of the column. Say I say this is the axis of the column. Sorry, जहाँ पे ये कॉलम तो जहाँ पे है ना, जहाँ पे this is that, right? Axis of the column, तो ये आपका लोड डिस्टेंस क्या होगा? P होगा। Now you understand? So as the eccentric load is applied on the column, what happens there? The column sway away. और ये राइट साइड के ऊपर है, तो कॉलम जो है दैट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द राइट साइड, राइट? तो कॉलम आपका जो है राइट साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा। सपोज right? So column will deflect towards right side. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जे आपका जो कॉलम है, तो जे राइट साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा, तो जे जो आपका डिस्टेंस है दैट इज ए, राइट? सो कॉलम विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड द राइट साइड। सो आई विल से दैट द पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी आ गया, द पॉइंट बी इज डिफ्लेक्टेड at point B dash, and the distance between this is the column and ये आपका कॉलम था पहले ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस दैट इज ए। You understand? But still
द सेंट्रिक लोड, तो दैट सेंट्रिक लोड इसके ऊपर है, वी हैव अप्लाइड द सेंट्रिक लोड हेयर। तो जो आपका सेंट्रिक लोड होगा दैट इज स्टिल एट द डिस्टेंस ई फ्रॉम हियर, जहाँ से ये सेंट्रिक लोड है, ये सेंट्रिक लोड इसका पी डिस्टेंस के ऊपर होगा, यू अंडरस्टैंड, एंड दिस डिस्टेंस इज ई, यू अंडरस्टैंड। डायग्राम समझ आया? व्हाट इज देयर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वी हैव ए कॉलम ए बी of length L. One end of the column is fixed and the other end of the column is free. This condition I have taken here कि एक कॉलम का एक एंड जो है फिक्स है, अदर एंड फ्री। Now at this column the eccentric load P is acting at some distance. This is you can say P जहाँ पे act कर रहा है, and this is the distance from the column A, column B, column AB, and this distance I say this is called the eccentricity and this is denoted by E. तो जहाँ से लेके जहाँ तक, जहाँ पे line of action of the load, eccentric load and the axis of the column के बीच में जो distance है, that is denoted by E. So I will say कि जहाँ से ये जहाँ तक क्या था, E था, you understand? अब जब eccentric load column के ऊपर act करेगा, so here the load is acting towards the right direction, जहाँ पे right side के ऊपर eccentricity लिया। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर होता तो कॉलम जो है लेफ्ट साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता, यू अंडरस्टैंड। सो कॉलम विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट। से द कॉलम विल डिफ्लेक्ट, जो राइट साइड के ऊपर होगा, द पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी था, इस पॉइंट के ऊपर ये आपका पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट बी था, पॉइंट बी विल गो at B dash. So let us say the distance जहाँ से लेके जहाँ तक कितना ये sway हुआ, कितना डिफ्लेक्ट हुआ at the top edge, टॉप पॉइंट के ऊपर A। अब कॉलम आपका जहाँ पे आया and still the eccentric load is acting on the column। अब कॉलम जहाँ से जहाँ गया, जब कॉलम जहाँ था तो eccentric load जहाँ पे था, when the column will move from here, top edge, you can say top portion of the column, top edge of the column that move from B to V dash, तो आपका जो सेंट्रिक लोड है वो आपका जहाँ पे चला जाएगा, यू अंडरस्टैंड। सो द डिस्टेंस इज ई, यू अंडरस्टैंड। जहाँ तक क्लियर है आपके चीजें? अब नाउ व्हाट आई विल से, नाउ टेक ए सेक्शन, कोई एक सेक्शन ले ले फ्रॉम द फिक्स एंड, फिक्स एंड से आप एक सेक्शन ले लें, सपोज दिस इज योर सेक्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स एंड ऑफ द सेक्शन कितना है, x इज द डिस्टेंस। तो सेक्शन आपने ये ले लिया, ये आपने सेक्शन ले लिया, यू अंडरस्टैंड। अब सेक्शन के ऊपर आई विल से कि ये जो आपका डिफ्लेक्शन है जहाँ से लेके जहाँ तक, ये आपका जो डिफ्लेक्शन है दिस इज इक्वल टू y। ये आपका कितना है डिफ्लेक्शन, ये आपका y। So this is, you can say this is the deflection at the section and this is equal to y। ये कुछ चीज़ें लिख लेते हैं हम फर्स्ट। सो आफ्टर द डिफ्लेक्शंस, मैं आफ्टर द डिफ्लेक्शन स्टार्ट करूंगा। आफ्टर द डिफ्लेक्शन पॉइंट बी विच इज एट द फ्री एंड, फर्स्ट क्या है आपका पॉइंट बी which is at free end, which is at free end of the column
point B, which is at the free end of the column, that moves to B dash. You understand? तो जो आपका लोड तो सेकंड क्या है, लोड P is still at a distance E, from B dash. लोड आपने देखा, पहले लोड P जो था वो B से E डिस्टेंस के ऊपर था, अब लोड P जो है वो B डैश से E के ऊपर होगा। ये पॉइंट मैंने लिख लिया, राइट। थर्ड, टेक ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस X from the fixed end. तो फिक्स एंड के ऊपर से एक अब सेक्शन ले लीजिए एट ए डिस्टेंस x। ये मैंने सेक्शन ले लिया फिक्स एंड से एट डिस्टेंस x, एंड दिस इज द सेक्शन। फोर्थ पॉइंट इसमें नोट करें, एट द सेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू y। एट द सेक्शन डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, एट द सेक्शन लेट y is the deflection. You understand? So at the section that y is the deflection. You understand? तो जहाँ तक ये चीज़ें सारी चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गए, व्हाट आर द पॉइंट्स हियर। तो मैं अब a और e इनकी वैल्यू भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि these the things we will use in the calculations. So at the deflection, जैसे मैंने लिखा, a क्या है, a is the distance, what is the a? Deflection at the free end. a क्या है, this is the deflection at free end. E क्या है आपका, सेंट्रिकसिटी, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी क्लियर किया, E is centricity and by is the deflection, y is the deflection at the section. You understand? y क्या है आपका, डिफ्लेक्शन है एट द सेक्शन, तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट एट द सेक्शन, अगर मैं कहूँ आपको तो मूवमेंट निकालिए, मूवमेंट एट द सेक्शन, व्हाट इज द मूवमेंट एट द सेक्शन, टेल मी। देखिए, वी हैव टू फाइंड द मूवमेंट हियर, इसका डिफ्लेक्टेड का, डिफ्लेक्शन का मूवमेंट जहाँ पे है
दिस पॉइंट इज देयर, ये डिफ्लेक्ट हुआ था, अब कॉलम जो है यहाँ पे आ गया। तो मूवमेंट ये होगा आपका, क्या होता है आपका, P लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वर्टिकल लोड है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये कितना डिस्टेंस होगा, जस्ट अंडरस्टैंड, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस है आपका A, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस है आपका E, A प्लस E, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना इसका लोड का, सॉरी ये लाइन ऑफ एक्शन, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, जहां से J वाला डिस्टेंस कितना है, राइट, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, दिस J डिस्टेंस ये आपका सेक्शन है, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कितना है, जहां से लेके जहां तक कितना है A, जहां से लेके जहां तक कितना है E, ये हो गया A प्लस E, द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, यू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये सेक्शन के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है इसका वो कितना है, बाई है, डिफ्लेक्शन इज बाई, तो A प्लस E माइनस बाई, तो वो क्या होगा, आ जाएगा वो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा A प्लस E माइनस बाई, दिस इज द डिस्टेंस, यू अंडरस्टैंड। सो A प्लस E माइनस वाई, दिस इज द डिस्टेंस, तो मूवमेंट आपका आ जाएगा A प्लस E माइनस वाई, you understand this? So movement at the section, this is clear to you how I have taken this A plus E minus pi, just understand here, मैंने बताया कि फ्री एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर, द डिफ्लेक्शन इज A एंड द लोड, सेंट्रिक लोड इज स्टिल एट द डिस्टेंस E, तो फ्री एंड आपका B जहां से जहां आया, तो इसके आगे जो है सेंट्रिसिटी है, लोड इज एक्टिंग हेयर, so total distance if I will calculate from here to here, this is A total plus P. हमें we have to calculate the movement on the section के ऊपर movement calculate करना है, तो आपका कॉलम, now I am taking the deflected column here, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, I am just taking the considering the deflected column here, तो deflected column के ऊपर J आपका section point है जहाँ से section आपका काटेगा, so it means that we have to take, this is the load and this is the perpendicular distance up to this point P, and up to this point I have to find that perpendicular distance, what is that, total deflection जहाँ से नोट कीजिए A plus E, this is the distance from here to here, A plus E, this is the distance, and if I will subtract this deflection minus Y, जो जहाँ से जहाँ तक जो point distance है वो क्या है, डिस्टेंस कितना है, बाई है, डिफ्लेक्शन आपको दिया है कॉलम का एट द सेक्शन कितना, बाई, तो A प्लस E माइनस वाई, सो दिस इज द, इस लोड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज A प्लस E माइनस वाई, और जो आपका मूवमेंट होता है दैट इज द लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू P इंटू A प्लस E माइनस बाई, एंड ये ब्रैकेट में रखिएगा, राइट, दिस इज द मूवमेंट एट द सेक्शन, यू अंडरस्टैंड दिस, सो दिस इज द मूवमेंट एट द सेक्शन। तो वेंडिंग थ्योरी जो आपने पढ़ा था, आपने एलोट थ्योरी ऑफ वेंडिंग में, उसमें पढ़ा था आपने कि एट एनी सेक्शन बेंडिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल, तो किसी भी सेक्शन के ऊपर बेंडिंग इक्वेशन आपकी क्या है, एप्लीकेबल है, एट एनी सेक्शन बेंडिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल, यू अंडरस्टैंड, किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये सेक्शन लेता हूं, तो बेंडिंग आपकी इक्वेशन होगी EI
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर equal to n, right? This is the Euler theory of bending. So this is the bending equation is applicable, and this is the bending equations का दो e I d square y dx square is equal to m, or you can say r e I d square by dx square. This is equal to, what is your m? This is p into a plus e minus y. You understand? अब इस इक्वेशंस को आप ओपन कर लीजिए. सो ये आपका आ जाएगा ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू P into A plus E minus Py. You understand? P into A plus E minus Py. और यू कैन से, इसको मिटा देते हैं. दिस इज ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. पी वाई को आप इधर ले जाओ, प्लस P by this is equal to P into plus. You understand? अब इसको EI से थ्रू आउट इक्वेशन को आप क्या करें, डिवाइड कर दें. यू अंडरस्टैंड? यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय EI. So divide this equation with EI. EI से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P upon EI into y. This is equal to P upon EI. You understand? So you will get this equation. This is the differential equation of the higher order. ये आपकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हायर ऑर्डर. सो ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर. यू अंडरस्टैंड?
मैं कहता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ पुट P upon EI, this is equal to alpha square. So therefore under root of P upon EI, this is equal to alpha. So इस इक्वेशन में P upon EI की जगह आप अल्फा स्क्वायर पुट कर लीजिए. You understand? So now your equation 1 becomes therefore d square by dx square plus alpha square into by this is equal to alpha square a plus c. Now this is your equation. ये आपका इक्वेशन बन गया जहां पे अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था? You understand this? So this is the differential equations जो मैंने modified form पे लिखा. तो ये आपका तो कंप्लीट सोल्यूशन अगर की मैं बात करूं, कंप्लीट सोल्यूशन मैं जहां पे कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं इसका निकालूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम जहाँ पे लिख लेते हैं. कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू बाई C1 cos alpha into x, right? C1 cos alpha into x plus C2 sin alpha into x. C1 इसको एंगल है ना इसमें ले लो. C1 cos ये इसको ऐसे करो प्लस C2 sin alpha into x and प्लस a प्लस e, और जो उसका सोल्यूशन में आएगा प्लस a plus c, right? So this is the complete solution of this differential equation. ये मैंने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दिया जहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग दिस वन, और अगर आपको किसी को कैलकुलेशंस करना है तो यू कैन डू इट एट योर ओन लेवल. सो y इज इक्वल टू C1 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस C2 sin अल्फा इंटू एक्स प्लस a plus e. This is the complete solution of this equation. So or you can say ऊपर से लिखते हैं. अब जहाँ से ऊपर से लिखेंगे हम, इसको मैं अभी रहने देता हूँ लिखने के लिए. तो therefore लिखिए आप y is equal to C1 cos ब्रैकेट क्या था, अल्फा क्या था, रूट ऑफ P अपॉन EI, राइट, इनटू x plus C2 sin of what is your alpha, that is root of P upon EI into x plus a plus e. You understand? Plus a plus e.
Now we will find the dy upon dx. So what is now derivative of this dy upon dx? इसको आप रख लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट. Differentiate y with respect to x, that is dy upon dx. क्या आएगा? cos, suppose this is your theta, cos theta minus sin theta, तो माइनस साइन आएगा पहले. सो माइनस c1 साइन ऑफ, एंगल पूरा सेम आएगा, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, रूट ऑफ p अपॉन e i into x. Now the derivative of the angle, cos का डेरिवेटिव आ गया, माइनस c1 साइन ऑफ दिस. अब किसका करना है हमें? डेरिवेटिव किसका निकालना है? एंगल का. तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? रूट ऑफ p अपॉन e i. यू अंडरस्टैंड? x का 1 होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? प्लस इधर लिख लो, प्लस c2 cos, साइन का cos आ जाएगा, बीच में यही आएगा, p अपॉन e i इंटू x इंटू रूट ऑफ p अपॉन e i. इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, राइट. प्लस प्लस a प्लस e. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई. यू अंडरस्टैंड? बाई की, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड. सॉरी, डी वाई वन डी एक्स है ना, तो ये आपका ए प्लस ई का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये जीरो आ जाएगा. जो प्लस जीरो कर लो आप, तो चलो शो कर देता हूँ आपको, प्लस जीरो. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. Now we have to find the value of the C1 and C2. हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है by the boundary conditions. ठीक है ना? By taking the boundary conditions, we will calculate the value of C1 and C2. तो C1 and C2, these are the constant of integration. ये आपको पता ही है, C1 and C2 are constants of integration. You understand? So by taking the boundary conditions, we have to find the value of C1 and C2. So by taking boundary conditions, बाउंड्री कंडीशंस लें. बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशंस, कैलकुलेट C1 and C2. You understand? तो बाउंड्री कंडीशंस हम, अब इसका यूज नहीं है, आई थिंक आई शुड, चलो डैम. तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है? अगर मैं बाउंड्री कंडीशन, अगर आपका x 0 है, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस x है, तो अगर x 0 है मीन्स एट x इक्वल टू 0, अगर x 0 तो डिफ्लेक्शन क्या है? जहाँ पे फिक्स एंड है ना,
this is y is 0 because y is the deflection. At x equal to 0, y is equal to 0. So if I will put this first boundary condition in the equation number 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ इसको, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो जे जहाँ पे x की जगह 0 पुट किया cos 0 1 तो c1 आ गया, और साइन की जगह हमने पुट किया तो 0 आ गया, एंड प्लस a प्लस e, राइट। तो देखिए पुट करके देखिए एट इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, पुट लिख लेते हैं, पुट इन द इक्वेशन 1 में पुट करें, तो देख लीजिए y आपका आ गया 0, y 0, तो ये 0 हो जाएगा, c1 आ जाएगा, जे c1 प्लस जे वाला साइन 0 0, ये सारे का सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, c2 वाली प्लस a प्लस e, राइट। तो c1 की हमें वैल्यू मिली, यहाँ पे नोट कर लीजिए, c1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस e, यू अंडरस्टैंड। तो c1 वी गॉट माइनस a प्लस e। अच्छा, दूसरा बाउंड्री कंडीशन अगर लेते हैं हम, x इक्वल टू 0, देन dy अपॉन dx दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं दूसरी कंडीशंस, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इधर लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, देन dy upon dx this is equal to 0. Put this value in equation number 2. तो जे वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो, पुट दिस वैल्यू, राइट। तो अगर इक्वेशन सेकंड में हम ये वैल्यू पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो जे आपका क्या बन गया, इधर लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड दिस बिकम्स 0, x इक्वल टू 0, तो जे टर्म्स c1 वाली की सारी 0 हो जाएगी। अब c2 में आ जाएगा, c2 cos 0 1 होता है, तो दिस बिकम्स, ये आपका आ जाएगा c2 इंटू रूट ऑफ p अपॉन ei, यू अंडरस्टैंड। So we have to find the value of the constant. Now the value of the constant that is given in the product form, that is C2 into this. So either you can say C2 is 0 or root of P upon EI is equal to 0. This is in the product form. तो इसका जो product है, multiplication of these two, C2 and this one, this is equal to 0. तो इसका मतलब है कि इसमें से एक चीज 0 होगा, जहाँ तो आपका C2 0 होगा, जहाँ आपका रूट ऑफ P अपॉन EI दिस इज इक्वल टू 0 होगा। बट रूट ऑफ P अपॉन EI ये आपका 0 नहीं होगा, ये आपका 0 नहीं होगा। रूट P upon EI that is does not equal to 0 because P is having a, P is the load, this is having the finite value, some finite value is there. E is the Young modulus of elasticity of the column, this is also having the value, and I, this is the moment of inertia if A is the cross section of the column that is circular
रेक्टेंगुलर है, क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, वो भी जीरो नहीं हो सकता। जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, कोई मटेरियल है, स्टील है, माइल्ड स्टील है, रॉट आयरन क्या है, उसका भी जो ई की वैल्यू है वो भी जीरो नहीं होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो नहीं होगा, एंड द लोड भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज इसेंट्रिक लोड, सम इसेंट्रिक लोड इज अप्लाइंग, वी आर अप्लाइंग ऑन द कॉलम. So you can say that this term root of P upon EI is not zero. So if root of P upon EI is not zero, so you can say, therefore you can say C2 this is equal to zero. तो इसका मतलब है दो में से तो एक जीरो होगा. Root of P upon EI is not zero. So it means that C2 is zero. Now we got the value of the two constants C1 and C2. अब हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई हैं, C1 एंड C2. सो C1 की क्या वैल्यू आई थी? C1 दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ई, नोट लिख लीजिए जहां पे. सो C1 माइनस ए प्लस ई and C2 this is equal to. So these two values we have got. अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये मिटा देते हैं हम, जहाँ तक ये ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस रहने देंगे. सो जहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट. ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम ये वैल्यू पुट कर लें. अब बाई हमारी इक्वेशन क्या आ गई, जब वैल्यू पुट किया हमने, C1 क्या है, माइनस ए प्लस ई, बाकी तो सेम है, कास रूट ऑफ P अपॉन ई आई इंटू एक्स, और जे टर्म आपकी जीरो हो जाएगी. C2 क्या आपका जीरो है, तो जब जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो जे टर्म आपकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो आ जाएगी आपकी ए plus E. You understand? This is, you can say this is your equation number 3rd. ये equation number 2nd थी. So you got this equation, y is equal to this one. This is your equation number 3rd. अच्छा, ये आपकी इक्वेशन आई. अगर मैं जहां पे लिख लेता हूं इन इक्वेशन 3rd, अगर मैं कहता हूं, ये कंडीशन लेता हूं, पुट अगर x इज इक्वल टू l है, x की वैल्यू l के बराबर है, राइट, तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो a के बराबर होगी. यू अंडरस्टैंड दिस. अगर x आपका l है तो y की वैल्यू, डिफ्लेक्शन क्या होगा, आप देखिए ना, डिफ्लेक्शन जहाँ पे, अगर x की वैल्यू, ये x जहाँ से शुरू हुआ, तो x की वैल्यू मैं जहाँ पे ले जाता हूँ, तो x की वैल्यू अगर l है तो y क्या है, y इज द, दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम. तो y की एट द फ्री हैंड डिफ्लेक्शन कितना है, a है. तो आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू a. तो ये वैल्यू आप 3rd इक्वेशन में पुट कर लीजिए. 3rd इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा, माइनस
a plus e cos of root p upon ei into L by equal to a plus a plus e. You understand? A plus e. Now, so therefore मैं इसको ऐसे कर लूँ, a plus e cos of root p upon ei into L this is equal to a plus e minus a कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, a को मैं इधर ले गया राइट साइड पे और इसको मैं लेफ्ट साइड के ऊपर ले गया। जब लेफ्ट साइड के ऊपर लिया तो माइनस साइन था, पॉजिटिव आ गया, और जब इसको मैंने राइट पे लिया तो इसका साइन माइनस हो गया। ये a और a आपका कैंसिल हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ से हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने ड्राइव किया, ये जो कितना डिस्टेंस के ऊपर एसेंट्रिसिटी क्या है इसका, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो एसेंट्रिसिटी आपका आया E इज इक्वल टू A प्लस E तो सेंट्रिसिटी तो आ गया, बट हमें वैल्यूज किसका चाहिए? यहाँ पे हमें टोटल चाहिए a प्लस ई का वैल्यू। तो a प्लस ई का वैल्यू निकाल लें आप। देयरफॉर a प्लस ई क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू e इंटू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक, तो इसे मैं सीधा कन्वर्ट कर देता हूं सेक रूट ऑफ पी अपॉन ई आई 12, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस ई। जहां से लेके जहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, ये मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया। यू अंडरस्टैंड दिस? So a plus e, this is equal to e sec of this is L है ना, L को अच्छे तरीके से लिख ले। L this is L। You understand? So this is the distance of A plus E। You understand this? जहाँ तक कैलकुलेशंस आपको समझ आ गया, डेरिवेशन समझ आ गया, जहाँ पे मैंने 2 बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल किया था, मैं इसको अब 5 मिनट में आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या था। इसको आप ध्यान से समझिए। दिस इज योर कॉलम ए बी एंड एसेंट्रिक लोड इज एक्टिंग ऑन द कॉलम एट सम डिस्टेंस। से E इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कॉलम। एसेंट्रिक लोड का जो डिस्टेंस है वो E। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री।
So the load is acting, eccentric load is acting on the column, so it means that the column will deflect towards the right side, right? So say the deflection of the column from the free end, the distance, this is equal to A, and the load is already there still at the column at the end point B. Point B जहाँ से point B डैश हो जाएगा, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, A है, तो लोड इसके आगे जाके P पॉइंट E के डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करेगा। जहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो A आप कह सकते हैं A है, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कॉलम, E इज द सेंट्रिसिटी। नाउ आई हैव टेकन द सेक्शन ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर सेक्शन ले लीजिए, फ्रॉम द फिक्स एंड आई हैव टेकन द सेक्शन एट ए डिस्टेंस x from the column, you understand? So say y is the deflection at the point of the section column, section, ये जो सेक्शन जहाँ पे काट रही है इस पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है कॉलम का वो क्या है, y, you understand? Load P is acting, now bending moment at the section क्या होगा, bending moment is perpendicular load, ये क्या है, this is the perpendicular load and the load and this is the perpendicular distance. तो मुझे इसका perpendicular distance means this distance I have to find out from point B, जहाँ से आइए the distance is A plus E, total distance minus y करके ये distance आ गया, and now हमारा जो bending moment है that is P into A plus E minus y, you understand? जहाँ तक चीज़ क्लियर है। now Euler's theory जो आपकी बीम थ्योरी है उसमें एट एनी सेक्शन एलर इक्वेशन इज एप्लीकेबल, किसी भी सेक्शन के ऊपर हम एलर्स इक्वेशन को लगा सकते हैं, और एलर्स इक्वेशन क्या है, दैट इज ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम, वेयर एम इज द बेंडिंग मोमेंट। तो एम की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू आप पुट करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन कर लें, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको दिया है तो आपको फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आपको मिल जाएगी, यू अंडरस्टैंड? आप उस इक्वेशन में यू विल गेट द टू कांस्टेंट C1 एंड C2 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट देयर। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट वी विल यूज द बाउंड्री कंडीशंस। इन दैट केस हम इस केस में क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस हम ले लेते हैं कि अगर x आपका 0 है, मींस एट द फिक्स एंड x क्या होगा, 0 है, तो डिफ्लेक्शन भी तो आपकी फिक्स एंड में 0 है, उसे आप पुट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वन कांस्टेंट। देन सेकंड यू विल टेक इस इक्वेशन को, जो आपको y में इक्वेशन आया था, उसके बाद इस इक्वेशन को आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकाल लें dy अपॉन dx, और अगर आपका x 0 है, y 0 है, तो इसका मतलब आपका dy अपॉन dx भी क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन आप ले लीजिए, x इक्वल टू 0, dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 0, वो वैल्यू पुट करें तो आपको वहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू मिलेगी। तो C1 C2 की वैल्यूज आपको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ द y, यू अंडरस्टैंड? अब जो वो इक्वेशन होगी उसमें फिर एक कंडीशन आप पुट करें, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस ई। a प्लस ई क्या है, जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट। तो वहाँ पे जो कंडीशंस हम लेंगे, अगर आपका x इज इक्वल टू l है, x की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू l है जहाँ तक है, तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, a होगा, यू अंडरस्टैंड? दिस इज द थर्ड कंडीशन वी पुट, and by putting this third conditions in the equation we will get the value of a plus e, and this is the value of a plus e। अब ये देखिए a plus e का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो अब हम आगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस। अब जो फाइनल हमने ये जो कैलकुलेशन किया, फाइनल हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन केस ऑफ द एसेंट्रिक लोडिंग इन द कॉलम। अगर कॉलम में सेंट्रिक लोडिंग है तो उस वक्त मैक्सिमम स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अ टोटल स्ट्रेस, जो मैंने पीछे फर्स्ट में आपको
स्टार्टिंग में बढ़ाया था, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, दैट इज द टोटल स्ट्रेस एंड दिस इज द सम ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस. यू अंडरस्टैंड, P अपॉन A प्लस M बाई अपॉन I. इन दोनों को अगर जमा करेंगे, सम करेंगे, दैट इज द टोटल स्ट्रेस. यू अंडरस्टैंड. सो जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस. इसको मिटा दें. We have to calculate maximum stress maximum compressive लिख लो, maximum compressive stress for column section. Maximum compressive stress for the column section. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, देर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस. सेंट्रिसिटी के कारण क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस कौन सी होंगी, देयर विल बी बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट stress. Now you understand कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जब कॉलम मैंने स्टार्ट किया था, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था. तो सेंट्रिसिटी के कारण आपके पास दो स्ट्रेसेस होंगी. तो डायरेक्ट स्ट्रेस मैं कहता हूँ सिग्मा नॉट, दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस जो आपकी होती है P अपॉन A, राइट, एंड सिग्मा B, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस. दिस इज इक्वल टू M into by upon I, right? So these two stresses we will get. And the total stress जो आपकी होगी, that is the maximum compressive stress. You understand this? Now, अब bending stress जो आपकी है, bending stress ये हमें कैसे मिली? Bending stress we got due to the bending moment. You understand? जो bending moment था, due to bending moment, बेंडिंग स्ट्रेस हमें कैसे मिली, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पे होगी, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको कहां पे भी मिलेगी, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, राइट. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको मिलेगी जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. यू अंडरस्टैंड. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, किस सेक्शन के ऊपर होगा,
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका इस सेक्शन के ऊपर होगा एट द फिक्स एंड. सो यू कैन से एट, यहाँ पे लिख लेंगे हम, एट फिक्स एंड, एट फिक्स्ड एंड ए क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. फिक्स एंड ए के ऊपर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. तो फिक्स एंड ए के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा? P into P is the load. Now what is the distance from here to here? तो ये डिस्टेंस जहाँ से लेके जहाँ तक, बिकॉज दिस इज़ अ फिक्स एंड, तो हमें जहाँ से ही लेना है. तो ये डिस्टेंस आपका जहाँ से लेके जहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा? A प्लस ई. यू अंडरस्टैंड? वर्टिकल डिस्टेंस लेना है तो क्या आएगा? P इंटू A प्लस ई. यू अंडरस्टैंड? P इंटू A प्लस ई. तो जहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा P इंटू A प्लस ई. राइट? तो अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ गया आपका? सिग्मा बी में पुट कर दे ये वैल्यू P इंटू A प्लस, यहाँ पे ऐसे करके ये बता दीजिए आप. तो सिग्मा बी, तो जैसे मैंने आपको बताया वो क्या था? M इंटू बाई अपॉन आई. राइट? तो सिग्मा बी मैक्सिमम क्या होगा? सिग्मा बी मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू M मैक्सिमम अपॉन आई अपॉन बाई. ऐसे भी लिख सकते हैं. आई अपॉन बाई ये क्या होता है? M मैक्सिमम, एंड दिस इज कॉल्ड द जेट सेक्शनल मॉडुलस. आई अपॉन बाई, दिस इज द सेक्शन मॉडुलस. तो M मैक्स की वैल्यू आप पुट कर लीजिए. देयरफॉर सिग्मा बी मैक्स, दिस इज इक्वल टू M मैक्स की क्या वैल्यू आई थी? P इंटू A प्लस सी. A प्लस ई की ये वैल्यू है तो ये लिख दीजिए पे E इंटू सेक रूट ऑफ P अपॉन E आई into L. You understand? Sigma B maximum, this is equal to this one. Upon Z, sorry, upon Z भी तो लिखना है. Upon Z. Right? So this is sigma B maximum. M maximum upon Z, this is the sigma B maximum. Right? अब total stress or maximum compressive stress, therefore maximum compressive stress
ऑन द सेक्शन ऑफ द कॉलम, ये आप खुद लिख लीजिए। सो मैं ये इतना ही लिखूंगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द कॉलम लिख लो। इस केस में कौन से सेंट्रिक कॉलम के केस में, सेंट्रिक लोडिंग के केस में, दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस क्या था। नाउ दिस इज द सम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम क्या होगा, टोटल स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है आपका, P अपॉन A प्लस P इंटू E sec रूट ऑफ P अपॉन EI इंटू L, राइट। ये आ गया आपका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द कॉलम अपॉन जेट। ये हर दफ़ा मैं बोल रहा हूँ। You understand? This is the maximum compressive stress on the column. You understand this? So ये आपकी ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन is used for a column ये लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव किया था वो क्या कंडीशंस लिया था कॉलम का, कि व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री। सो यू कैन से दैट this equation is used when one end of the column is fixed and the other end is free and the load is centric to the column. So ये जो आपकी इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर ए कॉलम। क्या कंडीशंस थी इसमें, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। So this is the equation. On this equation, this is the condition. On this condition, we have derived this equation, right? And centric load is acting on the column. ये भी लिख लो. Centric load is acting on the column. You understand? तो L जो मैंने जहाँ पे लिया है, L जहाँ पे कि मैंने लिया है, दैट इज द एक्चुअल लेंथ, वेयर एज L इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम, L की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये जो है L आपका है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। अब देखिए, इसको मिटा दो, सारा मिटा देते हैं। जब आपकी ये कंडीशन होती है, जब आपकी ये कंडीशन होगी, व्हेन वन एंड is fixed and other end is free
जब ये कंडीशन होगी, जब आपका एक का एंड फिक्स है तो दूसरा फ्री है, उस केस में आपका जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज एल ई, जो आपका इफेक्टिव लेंथ है दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल, राइट। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा उस केस में, बिकॉज हम ये जो इक्वेशन ड्राइव किया सेंट्रिक लोडिंग ऑफ द कॉलम्स का, कंडीशन क्या थी कॉलम की उस वक्त, वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, और ये जो एल इज द लेंथ मैंने लिया था दिस इज द एक्चुअल लेंथ। अगर मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करूं, बिकॉज द कंडीशन इज वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, in that case effective length this is equal to LE equal to 2L in case of when one end is fixed and other end is free। तो जहाँ पे L जो आपका क्या आएगा, एक्चुअल लेंथ क्या आएगा, LE upon 2, you understand, LE upon 2। तो मैं ये वैल्यू एक्चुअल लेंथ की जहाँ पे पुट कर दूँ, therefore मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आ जाएगा, दैट इज P अपॉन A प्लस P इंटू E sec रूट ऑफ P अपॉन E I। L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जहाँ पे, LE बाई 2 इंटू LE बाई 2, राइट, अपॉन Z। सो दिस इज योर जनरल फार्मूला फॉर एनी लेंथ ऑफ द कॉलम। ये आपका एक जनरल फार्मूला मैंने ड्राइव कर दिया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन केस ऑफ द कॉलम, सेंट्रिक कॉलम, यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन से दैट so this formula you can use for any type of end condition because this is the general formula। लिख लो, ये आपका है जनरल फार्मूला। तो किसी भी टाइप की जो एंड कंडीशन होगी उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की एंड कंडीशन होगी तो ये आपका जनरल फार्मूला है। सो आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आज जो आपका टॉपिक था ये कॉलम विद द सेंट्रिक लोड, इसका भी आपने डेरिवेशंस कर लिया और इसको कम्प्लीटली इसका जो कंसेप्ट था वो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, यू अंडरस्टैंड हियर। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, वो आपके उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, फार्मूला टाइप बेस्ड हैं, तो उसको इधर कराने का देयर इज़ नो यूज़, ओनली देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो आप उसमें जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। फार्मूला टाइप बेस्ड हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे दिया होगा, तो वहाँ पे आप ये कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक था ये कॉलम का, इसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर करके डिस्कस कर लिया। ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, यू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि विच टॉपिक आई विल टेक, आइदर आई विल गो टू द फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक लूँ, जहाँ इसी का कोई फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक दो टॉपिक रहते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी डन। इसमें एक तो टॉर्शन का टॉपिक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। I am thinking either I will take the torsion or I will go to the fluid mechanics, that I will see later on. So today is enough. This is the last topic and आप सारे इसके जो lectures हैं इसको from the first lectures to I think this is the 6th lecture or 7th lecture, I don't know, तो उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें आपको complete जितना भी इसका डिटेल है, concepts हैं, हर चीज़ आपको क्लियर होगी, you understand। So thank you very much.